are allowing that 1 hour which we are investing right now to be fulfilling. Hence, it is important to be 100% alert and aware and involved in every practices that we do. Hence, let us make a small prayer for this commitment. Let us take a deeper breath in. सभी बहुत ही दीर्घ लंबा गहरा श्वास भरे. And let us start with the prayer. Om. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimani Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukamiva Bandhanat Mrityormokshe Amamrutat Yogena Chittasya Padena Vacham Malam Sharirasya Cha Vaidyakena Yopakarotam Pravaram Muninam Patanjalim Pranjaliranatosmi Patanjalim Pranjaliranatosmi. Om. Requesting everybody to rub your both palms together. दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करें और सहजता से आंखों की पुतलियों पर अलग-अलग स्पर्श कराते हुए आंखें खोले for the beautiful session to start. So, good morning once again. सभी से अनुरोध है कि अभी हम जो अभ्यास करने जा रहे हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि हवा का आवागमन रहे. So please make sure that you have you've opened the windows or doing it open air ताकि वो fresh oxygen हमारे शरीर के हर एक कोशिका को rejuvenate करे, revitalize करे and thereby allow करे to replenish more beautiful cells, more brighter and more healthy cells to come up. है ना? So let us make sure that we do this practice and also पानी की बोतल साथ रखी होगी ही ना, तो जब भी जिस भी मोमेंट में लगे थकावट हो रही है, एक घूंट पानी का make a squash and then slowly इसको निखाना, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे निगलना है उसको. Okay? So yes, with that said, let us start. Firstly, I would request everybody to stand upright. सभी खड़े हो जाएंगे. सभी खड़े हो जाएंगे. Let me see. Yes. सभी से अनुरोध है अपनी दोनों पोजीशन को एक जॉइंट पोस्चर, जैसे दोनों पैरों के पंजों को एक साथ रखें, अपनी दोनों हथेलियों को बाजुओं में रखें, like allow your both hands to be by the sides. श्वास भरेंगे गहरा and we will allow our both of the foot to be in form of lifting and getting up on the metatarsals. Hold the position upright. Hold.
hold and down. हथेलियों को उठाना नहीं है, it is just the metatarsals to be focused upon. फिर से एक बार श्वास भरे. These small practices pave a long way to help improve our neuromuscular coordination. तो जैसे अगर मैं यहाँ पे मिस्टर कंकाल की मदद से आपको समझाऊं, metatarsals are nothing but, I hope it is visible. Second. Yes. Metatarsals are nothing but the forward part, ये वाला. तो इन पंजों पर हमें खड़े होना है, this part, right? So this entire पीछे यहाँ तक का भाग हमारा जमीन पर pressed रहेगा, and we have to ensure that the entire, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, टिबिया और फिबुला ये दो बोन्स होते हैं, और इन दो बोन्स के ऊपर ये फीमर बोन होता है. तो ये फीमर बोन और tibia fibula, all of them have to be involved while doing this practice of Tadasana, with keeping both of our hands aligned as they are. Okay? अब हम हाथों को भी इन्वॉल्व करेंगे. अभी नहीं पता, इसने 7 बच्चियां पैदा करी है यहाँ पे मेरे सामने. The kittens. श्वास भरेंगे गहरा, and let us lift it up. Hold the position. Hold. 10. आंखें बंद करें सभी. ट्राई करें कि आप बिना आंखें खोले बैलेंस करें. It is difficult, it is tough, but then it's not impossible. ट्राई करें and then get it down. फिर से एक बार श्वास भरे. Hold and get it down. फिर से एक बार श्वास भरे and let us hold. Hold. Let me check. Slowly get it down. आराम से करना. बस यही भाव हो कि हम अपने दोनों पैरों के बीच का और अपने शरीर का संवाद, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर रहे हैं. ओके, वंस अगेन, फिर से एक बार. Yes, so I hope the position is visible now. Slowly get it down. Yes. अब हो सकता है आंखें बंद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट इट्स ओके. अगर आप आंखें खोल के प्रॉपर परफेक्शन ला पा रहे हैं, आंखें बंद करके भी होएगा. ओके, एंड यस, नेक्स्ट पोजीशन. दोनों हाथों को कमर पर रखें. और दोनों पैरों के बीच में फासला बने. श्वास भरेंगे सभी, और अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठा के बाईं ओर ले जाते हुए अनुभव करें दाहिनी साइड में होने वाला स्ट्रेच. By turning to the left side, we are focusing at the right. दाहिनी side, दाहिनी माने right. So focusing at the right, happening, whatever stretch that has been felt in the right side has to be looked upon with the closed eyes. Hold the position. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. श्वास भरे and back to your position. फिर से एक बार गहरा सांस भरे. Exhale. 10. Hold. Let me check. अपना जो हाथ है ना वो बिल्कुल नीचे 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 नीचे. Hold. 10, 9. कुछ चीजों का ध्यान देना है, जैसे जब हम हाथ रख रहे हैं कमर पर, दूसरा हाथ जब ऊपर रहेगा, we have to ensure that this part, the bicep part, is touching ear and the other one is been holding the back spine, ताकि हम अच्छे से उस पोजीशन में रहे. ना आगे झुकना है ना पीछे झुकना है. So the position has to be in one plane. Hold. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. फिर से एक बार श्वास भरे and back to your position. दूसरी साइड. अब करेंगे दूसरी साइड. एक्सहेल करेंगे और दूसरी ओर. 1, 2, 4, 3. So this is the final position where we allow our arm to be perfectly straight and holding the position aligned. Hold for few more minutes.
few more seconds to go and breathe. Okay, great. अब टर्निंग करेंगे कटी चक्रासन में, पीछे की ओर मुड़ते हुए अपनी पीछे के पैर के पंजे को देखना है, श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति और कमिंग बैक टू योर फॉरवर्ड पोजीशन, एक्सहेल टर्न. सो आप में से बहुत जनों को ये महसूस हो रहा होगा कि आई एम स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट सेम प्रैक्टिसेस व्हिच आर टू बी डन स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू द स्पाइन. उसी प्रकार जब मेटाबॉलिक का वर्कशॉप रहेगा उस दौरान कुछ अलग स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस होंगे जो आपको रूटीन में कराए जाएंगे, which are specifically pertaining to the several metabolic, endocrine and exocrine glands. श्वास भरे and to the other side. Inhale again. Exhale to the other side. Inhale again. Exhale. Inhale and release. दोनों पैरों में फासला जो बना हुआ है ना, उसको और थोड़ा सा बढ़ाते हैं. Let us increase the gap between both legs a little bit more wider and let us get ready to place both hands on the waist. We are going to have a sideward movement. क्या कर रहे हैं हम just pulse कर रहे हैं. So we are just pulsing towards left and right, ensuring that our spine is erect throughout and the thigh parts are getting stretched and relaxed. Stretched, relaxed. 1, 2, 1, 2. इस अभ्यास के दौरान पैरों की पोजीशन कैसे रहेगी? ओब्लिक, तिरछी. So they are placed at an angle. Okay, ना ज्यादा फ्रंट में ना ज्यादा साइड में, ऐसे साइड at an angle position. 1, 2, 3, 4, 5. और जो अभी कन्वीनियंट हो पा रहे हैं. So this is specifically to help improve our जैसे कहते हैं ना sciatica दर्द होता है, वो कहीं ना कहीं हमारी वो बटक एरिया की नर्व की पिंचिंग के कारण होता है जो दोनों साइड से चलती है. बट अगर इन कुछ अभ्यासों को करते हैं रूटीन में, it helps us not only to stay away from sciatica but also helps to recover and help a very healthy body to continue with. And अगर जो थोड़ा सा अपने आप को पुश करना चाहेंगे, then I would request everybody to try and do the practice of coming in front, bringing both arms forward, taking it up and turning down. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. करते रहे. Let me check. 2, 1, 2. अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे. 1, 2, 1, 2. ओके. और जो चाहते हैं कि जंघाओं में थोड़ी सी और फ्लेक्सिबिलिटी लाए, तो जैसा शोभा मैम को बताया था पहले, you can also allow your arms to be brought down and then going up like this way. दोनों हाथ जमीन पर आ गए. एक बार लेफ्ट राइट साइड जाएंगे, श्वास भरते हुए लेफ्ट साइड. इस अभ्यास में आपको लग रहा होगा कि हम अपनी कमर को कुछ ज्यादा ही नीचे झुका रहे. इन सच केस यू कैन इवन यूज अ ब्रिक. ओके, योगा ब्लॉक का इस्तेमाल करके भी आसानी से हो सकता है. where we turn towards one side, take control, turn to the other side. इससे क्या हो रहा है? जो नर्व है जो अपनी पीठ से लेकर के नीचे बटक एरिया तक गुजरती रहती है, कौन सी है वो नर्व? sciatica nerve. It also gets that, it allows it to stretch and relax. Stretch, relax. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 and relax. फाइन. दोनों हाथ कमर पर रखेंगे.
अपनी दाहिने पैर का पंजा दाहिनी सामने और बाएं पैर का पंजा बाईं ओर टर्न करें ट्रंक एरिया. ओके, एंड लेट अस हैव अ बेंडिंग. कैसे करेंगे बेंडिंग? बेंडिंग इस भाव के साथ करें कि जो पीछे वाले पैर का पंजा है, द बैक थाई हैज टू बी स्ट्रेचिंग while the other one forward knee is flexing, back knee is stretching, extending, forward knee is flexing. Okay, so 1, come back, 1, उसी पैर से करेंगे 1 2, आराम से करना. जब भी नीचे जाए एक्सहेल करें. एक्सहेल 1, इनहेल, एक्सहेल 1, inhale, exhale 1, inhale, exhale 1, inhale, exhale 1, inhale, exhale and relax. दूसरे दिशा पीछे वाले पैर को हील उठेगा क्या थोड़ा? नो, हील उठेगा मतलब हाँ. सो द पोजिशन इज इन्वर्जन है जैसे. Is it visible? Yes, it's visible, right? हाँ, तो जो अंदर है ना, अंदर का भाग है ना, the inner part has to be inside inclined. So yes, so it has to be putting pressure and releasing. So by the time the inner side is put under pressure, the outer area will definitely lift up. But it is not specifically the heel lifting up because half of the heel is on the ground. है ना? जो आप देख पा रहे हो, लेट मी डू इट. जो अंदर का भाग है उसका अगर मैं साइड से दिखाऊं, सो द पोजीशन इज सच दैट इट इज half of the heel is on the ground. 1 2, is this visible? 1 2. अब हो सकता है इतना कंफर्ट हो किसी का इतना कंफर्ट जोन हो, किसी का नीचे आने का पोजीशन बन पाए. टेक इट अप एंड नाउ लेट अस गो फॉर द अदर प्रैक्टिस. मतलब दूसरे दिशा में दाहिने पंजे को दाहिनी ओर ले जाए, बाएं पंजे को सामने. लेट अस बेंड 1 2 1 2 1 2 1 2. तो जब हम सामने आए, like when we inhale, both of the knees have to be straight. I hope it is visible. Both the knees are straight, both the soles are on the ground as well. But when I turn towards right, half of the sole, you know, the plantar part tilted है, bent है, outward है. So is this understood? Fine. Release. Okay, great. अब क्या करना है? अब ध्यान से देखना, दोनों घुटनों में जो मसल्स, घुटनों के इर्द गिर्द जो मसल्स है ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स छोड़ना है. कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स छोड़ना है. सो लेट अस प्लेस बोथ हैंड्स ऑन द वेस्ट. आंखें बंद, क्लोज द आईज and let us start contracting. Contract your knee muscles, relax them. Again, contract, relax, contract, relax. करते रहे. Contract, relax. करते रहे. आंखें बंद, बस ध्यान अपने घुटनों पर. Okay, contract your knee muscles, pull them up towards you, relax them. Again, pull them up towards you, relax them. Inhale as you contract, exhale as you let go. Inhale as you contract, exhale as you let go. Fine. Let us have a mild walk. Mild walk. कैसे mild walk रहेगा? जो पैरों के पंजे है ना, ऐसे 1. So firstly we'll just get into the mode. कैसे करना है? The metatarsals will be throughout placed on the ground. जो ये भाग है ना,
इस भाग को जमीन पर रखेंगे थ्रू आउट द प्रैक्टिस. इट इज जस्ट दैट वी आर गोइंग टू टर्न अप एंड डाउन. 1 2 1 2 1 2 1 2 करते रहे. इसी को गति देंगे तो वो थोड़ा सा और इन्वॉल्व हो जाएगा. करते रहे. And now let us have a mild walk by slightly lifting the foot. अपने पैर के पंजे को थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, but we will be still ensuring that the main focus is to allow the movement of the lower area. And once you are done, let us have a jogging. Jogging कैसे हो? जो अपनी heel है ना, उसको try करेंगे पीछे ले जाने का. जैसे mentioned है, जिनको active pain है, अगर मान लो कहीं पे एक्टिव दर्द है, एक्यूट दर्द है, तो उस कंडीशन में आप जॉगिंग अवॉइड करके यू कैन डू अ नॉर्मल स्लो मूवमेंट. बट अदरवाइज लेट अस जॉग. 1 2 3 4 5 6 करते रहे. सांसों की गति सामान्य. ब्रीद इन एज वी जॉग. करते रहे. Slowly relax. Requesting everybody to please lie down in your position. सभी अपने अपने पोजीशन में लेट जाएंगे. Let me use another mat because this has been occupied by Miss Pussycat. बिल्ली ने ऑक्यूपाई कर लिया है. तो हाँ, क्या करना है? I would request everybody to lie down for some time, ensuring that both of our knees are perfectly grounded. Let us have some gentle movements to allow the blood circulation to be felt throughout the body. क्या करना है? अपने दोनों पैरों के पंजों को outstretch करें. Allow your both of the feet to be stretched out. Hold and towards you. Again, stretch them out. Hold, and then get them towards you. Now let us have a rotation. रोटेशन करते वक्त यही ध्यान हो कि हमारे जो बटक्स है ना, हमारे जो कूल्हे हैं वो जमीन पर रहेंगे. Both the heels will be on the ground throughout. It is the rotation which involves the sole and the tibia, fibula, shin bone area. करते रहे. Other way around. Rotate, continue rotating and relax. दाहिने पैर के पंजे को on the जमीन पर रखें. Allow the right knee to be perfectly, facing the rooftop. और अपने बाएं हथेली को दाहिने घुटने पर रखते हुए let it twist towards one side while we look to the opposite side. Let us hold the position. Ensure करें कि दूसरा जो हाथ है वो बिल्कुल straight हो. Let us try to allow the trunk area, जो अपनी trunk का भाग है, उसको twist करते हुए गर्दन को opposite side में turn करके hold करना है. श्वास भरेंगे. Back to your position. फिर से exhale, turn. Inhale, center. Exhale, turn. Inhale, center. Please let me know if the posture is not clear. Let me do it in the other side. दूसरे साइड से दिखाती हूँ. जब हम श्वास भरेंगे ना, तब हमें बिल्कुल अच्छे से अपने घुटने को opposite, like towards the rooftop रखना है. Exhale करते हुए turn करें and look to the opposite side. फिर से श्वास भरे. Exhale, look to the opposite side. अपनी जो हथेली है वो ऊपर आसमान की तरफ रहेगी.
then back to its position, and then again twist to look to the opposite side. Back to your position. Relax. Relax. Let us have a cycling. तो क्या करना है, दोनों हाथों को जमीन पर रखें, हथेलियों के कड़तल भागों को जमीन पर रखें. Let us have a cycling mode on while we allow the movement of both of the legs to cycle. Let us ensure that the back, so अपनी जो कमर का भाग है वो बिल्कुल जमीन पर ऐसे सटा हुआ रहेगा. Okay, let's continue. Let us ensure that the lumbar, cervical, thoracic, sacral, coccyx area is on the ground, firmly planted on the ground, while we allow both of the legs to cycle. अब दूसरी दिशा में इस अभ्यास को वो ना करे जिनको मान लो इंजेन्युअल हर्निया हो या फिर पीरियड्स चल रहे हो, उस कंडीशन में ना करें. बाकी प्रेगनेंसी में तो मना होता ही है. So जिनको भी abdomen specific contraction मना है, they have to be avoiding the cycling, but otherwise it's a very beneficial for helping thighs to mobilize and thereby allow the blood circulation to improve. It is all correlated. अपनी lower area का health spine पर टिका रहता है. How? Because the entire body is being supported by both of the legs, right? So it is very important to ensure we have to have a good blood circulation in the thighs. करते रहे. Continue माधवी जी. Yes. Try करें कि वो एक बड़ा सा circle हो. Try making a big circle with the arms. अगर मैं आपको हाथों से दिखाऊं तो ensure करें बिल्कुल एक पैर जब straight हो ना, पूरा straight हो. Then towards, straighten towards. 1, 2. इस अभ्यास को करते समय श्वासों की गति सामान्य रहेगी. Breathe nicely and then continue. आंखें बंद बिल्कुल अच्छे से करते रहेंगे with the process of allowing the movement of the body or specifically the lower parts to help and recharge the spine. करते रहे. रिलैक्स. अपोजिट साइड माने अगर आप एक दिशा में ले जा रहे थे, अब दूसरी, अब उसको व्हील्स को रिवर्स मोड में लाते हैं. कंटिन्यू. रिवर्स द गियर्स. यस, करिए माधवी जी. करिए. मेरी सब पे नजर रहती है. हाँ, कोई भी आनाकानी नहीं करेगा. करते रहे. करते रहे. Leena ji, unless and until you are told not to put pressure on the abdomen, I would request you to make a big circle in terms of allowing the leg also to move. जैसे चाक घूमती है ना, बिल्कुल नीचे भी लाना है उस पैर को, ऊपर नहीं घूमना है. Get it down as well, take it up and then down. Make a big circle. Yes. हाँ. कभी भी किसी भी मोमेंट में आवाज का अगर कोई इशू रहे, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज वो आप ही है जो बता पाएंगे, नहीं तो मुझे नहीं पता चलेगा. क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है ना. समटाइम आई मीन हरिद्वार तो वो वाला नेटवर्क बेटर रहता है, समटाइम्स हियर. सो रिलैक्स. छोड़े. रिलैक्स. लेट लूज. पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़े. शालिनी जी, पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखो. स्ट्रेटन इट. यस. मान लो एक शव की आकृति में आपने अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दिया. ओके, लाइक अ कॉर्प्स बॉडी, जस्ट सरेंडर. यस. हथेलियां आसमान की ओर खुली. Let us ensure both of the palms are facing the sky. Breathe nicely. Exhale completely. Breathe in again. Exhale nicely.
breathe in, and let us get ready for allowing the abdominal navel area to inflate. ट्राई करेंगे कि अपनी जो नाभि का भाग है ना उसको हम फुलाएं. कैसे फुलाएंगे? श्वास भरते समय जैसे छोटा बच्चा सोते समय अपने छाती के साथ साथ पेट को भी फुलाता है, like how the small baby inflates the navel area along with the chest, we have to be also doing so. Okay, let us inhale. अपना ध्यान नाभि पर, फोकस ऑन द नेवल, ब्रीद, इनफ्लेट. कोई भी टाइट कपड़े बिल्कुल ना पहने, लेट देयर बी अ फ्लो ऑफ ब्लड सर्कुलेशन. ओके, तो मेरा हमेशा यही सुझाव रहता है क्लास के दौरान सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल मत पहनना, लेट इट बी कॉटन क्लोथ्स. ओके, कंटिन्यू ब्रीदिंग इन, breathing out, breathing in, breathing out, breathing in. और हाँ, ध्यान रखें कि आपका जो पूरा भाग है वो जमीन पर मतलब मेट पर हो. ओके, यस. कंटिन्यू ब्रीदिंग इन, एंड लेट अस गेट रेडी टू नाउ फोकस एट द आईब्रो सेंटर. अपने भ्रू मध्य पर ध्यान दें. Focus at that area which is supposed to be known as the third eye center point. अपने ध्यान को तीसरी आंख पर फोकस करते हुए यही ध्यान हो कि हम अपने सांसों के साथ साथ उस एरिया को स्टिमुलेट कर रहे हैं. श्वास गहरा भरे दोस्तों. ब्रीद इन, ब्रीद इन, breathe in, and breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, and let us get ready to now focus on the right arm. अपने ध्यान को दाहिने पूर्ण हाथों के एरिया पर ले जाए. Let us focus firstly at the shoulder. अपने कंधों पर ध्यान दें, दाहिने कंधे पर. The right shoulder has to be looked upon. Let us focus on the right bicep area. Breathe. अनुभव करें कि अपने दाहिने हथेली के दाहिनी भुजा के प्रति हमारा ध्यान और ज्यादा सतर्क हो रहा है, सतेज हो रहा है, और हम श्वासों के माध्यम से उस जगह पर ध्यान दे रहे हैं. कितने दिन हो गए इस जगह पर कभी मनपूर्वक ध्यान ही नहीं दिया. अब बारी है उस जगह को पोषित करने की प्राणवायु से. श्वास भरे दोस्तों और अपने ध्यान को दाहिनी कोहनी पर ले जाए. With the breath, let us focus at the right elbow area. Breathe in. And now focus at your forearm. दाहिने forearm जगह पर ध्यान दे. You can see the two bones which are making the forearm. Radius, ulna. ये दो bones होते हैं जो अपने forearm में रहते हैं. They help us to make a twisting movements. Let us be courteous to be focusing at that point, breathing and infusing the prana or the vital energy at that area. And then let us bring the attention to the wrist. दाहिनी कलाई पर ध्यान दे. श्वास गहरा भरे और उस दाहिनी कलाई को बिल्कुल आराम से पोषित करते हुए breathe in, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Let us become aware of the
राइट पाम, अपनी दाहिनी हथेली पर ध्यान दे। अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, relaxed, completely relaxed. Focus on the left side. Let us bring the attention to the left arm. शोल्डर पर ध्यान दे, बाएं कंधे पर ध्यान देते हुए उस कंधे के ऊपर जो एक बहुत ही भार लदा हुआ है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ के दूर करें, अपने कंधे को शिथिल करें। Left shoulder should be relaxed. Hold for a moment. And slowly relax. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. श्वास गहरा भरे और अपने लेफ्ट भुजा पर, बाइसेप पर ध्यान दे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, allowing the left bicep to revitalize. Let us breathe in deeply. Breathe out. नोटिस करें क्या मेरे भुजा में कहीं पे कोई दर्द छिपा हुआ है? अगर छिपा हुआ हो उसको बिल्कुल अपने श्वासों के माध्यम से शिथिल करें। आप अनुभव कर पा रहे हैं कि चाहकर भी शरीर का भाग हिल नहीं पा रहा। You are able to experience that heaviness in the body such that even if you wish to, you are not able to move. Let us be stable, still, and steady. Breathe in. Breathe out. श्वास गहरा भरे दोस्तों और अपने ध्यान को एल्बो, थोहनी पर ले जाए। The left elbow to be focused upon. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. श्वास गहरा भरे और अपने ध्यान को बाएं फोरआर्म पर ले जाए। The left forearm to be focused upon. Breathe in और अनुभव करें एक श्वास की किरण उस फोरआर्म के हर एक कोशिका को रिवाइटलाइज करती हुई। ब्रीद इन। इस अभ्यास को करते समय कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, बट बंद आंखों से उस जगह पर ध्यान देना है। With the closed eyes, like an observer, like a silent observer, focus at that point, breathe in and breathe out. Fine. Let us bring the attention to the wrist area. Relax the wrist area. Breathe in, breathe out. Let us inhale and focus at the entire phalanges. अपने उन सभी उंगलियों पर ध्यान दें। बाएं हथेली के अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, and relax. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in,
breathe out. Let us bring the awareness at our spinal cord and the spinal column area. श्वास गहरा भरे और अपने ध्यान को कमर पर ले जाए. Allow the focus to be brought at the spine, specifically starting at the cervical area. अपने ध्यान को गर्दन की ओर ले जाए. Breathe, allow the air to pass through the cervical area. आप देख पा रहे हैं कि जो हवा का वेग है वो गर्दन के हर एक कोशिका तक पहुंच रहा है, रिलैक्स कर रहा है. और अब हम अपने ध्यान को thoracic एरिया तक ले जाएं. The 12 vertebrae, small vertebrae that makes up the thoracic area has to be focused upon. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. श्वास गहरा भरे और अपने ध्यान को हम ले जाएंगे lumbar area में. The 5 vertebrae of the lumbar area to be focused upon. L1, L2, L3, L4 and L5. श्वास भरे और जो कमर का भाग है उसी जगह पर अपनी lumbar area के छोटे छोटे vertebrae stacked up होते हैं. Allow करें with the inhalation you are allowing them to extend, open them up nicely and then relax. श्वास गहरा भरे, sacral area पर ध्यान दें. The 7 vertebrae of the sacral area also to be focused upon. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us breathe and bring the awareness at the coccyx area. Inhale and exhale. Inhale, exhale. श्वास गहरा भरे और अपनी नाभि पर ध्यान देते हुए टर्न करेंगे towards the left side. I would request everybody to turn to the left side. है ना? Turn into the left, bending both the knees. Get yourself support of the arms to sit comfortably in Sukhasana. Okay? आंखें बंद करना कुछ समय and let us now get ready to focus at the back spine. अगर मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊं तो अपनी जो कमर का भाग जिसको हमने अभी स्टिमुलेट किया था उस जगह पर ध्यान देते हुए हमें ट्राई करना है that we are allowing our spinal area to extend. ओके और इसके लिए जरूरी है कि आप अपना एक हाथ बाएं हथेली को पीछे ले जाएं. Allow your left hand to be brought behind this way. यहाँ पे जो नहीं समझ पा रहे आप आंखें खोल के देख सकते हो. Your this part, the vertebral column where this is the यहाँ तक thoracic area रहता है फिर lumbar start हो जाएगा ना. This part has to be focused upon lumbar यहाँ पे. ओके और जो frontal area है वहां पर अपना chest यहाँ the navel area to be focused upon here. So breathe in, breathe out. तो इन शॉर्ट बताऊं तो जो हाथों का भाग है वो पैरों और दोनों हाथों का हथेलियों का जो भाग है वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, अंदर बीच में पेट रहेगा. ओके सो ब्रीद इन, अलाउ द नेवल टू इन्फ्लेट और जब हम एक्सहेल करें ना उस दौरान ट्राई करें कि पूरा पेट अंदर जाएगा और साथ साथ में कमर का भाग है ऐसे मान लो नाभि बिल्कुल कमर से सट गई हो एक्सहेल करते समय. फिर से श्वास भरे, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल. जैसे मान लो ये नाभि का भाग है और वो हम इनहेल करते समय फुला रहे हैं, एक्सहेल करते समय वापस ला रहे हैं. 1 2 इनहेल,
इंटरचेंज द हैंड पोजिशन. सो अगर बाएं हाथ को हम सामने रख रहे हैं तो दाएं हाथ को पीछे रखना. कंटिन्यू. अलाउ करें कि बस उस जगह पर बिल्कुल एक नीर क्षीर विवेकी की तरह हम देख रहे हैं. नीर क्षीर विवेकी कौन होता है? बगुला. बिल्कुल वो पानी और दूध को एक अवेयरनेस के साथ छांटने का तरकीब उसके अंदर होता है. तो उसी नीर क्षीर विवेकी की तरह हमें अलर्ट मोड में बस केवल श्वासों को नेविगेट करना है एट द एब्डोमिनल एरिया. फोकस. आप देख पा रहे हैं कि कमर बिल्कुल स्ट्रेट है, अपनी स्पाइन बिल्कुल, बिकॉज हमने हाथों का ओरिएंटेशन ऐसे रखा है इसलिए कमर बिल्कुल स्ट्रेट अलाइंड है. Relax. Okay, now requesting everybody to ensure that you are allowing your both of the shoulders to droop it up. ऊपर करें, ढीला छोड़े. जिसको शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम रहा हो तो वो अवॉइड कर सकता है, बिकॉज वी आर पुटिंग सम जर्क एज वेल, बट ऐसे नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा आपको कोई प्रॉब्लम. ओके, मतलब मानो जैसे कोई भी भार था उसको बिल्कुल हमने ढीला छोड़ दिया. टेक इट अप, रिलैक्स, एंड लेट अस गेट रेडी टू रोटेट. ओके, क्या करना है? अपने दोनों शोल्डर्स पर ध्यान दे एंड लेट अस रोटेट इट. रोटेट मानो जैसे दो अपने जो शोल्डर्स है ना, यहाँ पे ऐसे दो पेन्स है और उन दो पेन्स को आप रोटेट करके वो एक बड़ा सा सर्कल बना रहे हैं. यस. दूसरी दिशा में अगर हम सामने से ले जा रहे थे, अब पीछे से. अनुभव करें कि इस अभ्यास के दौरान न केवल शोल्डर्स बट अपने पीछे के शोल्डर ब्लेड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. बिल्कुल आराम से करें, श्वास प्रश्वास के साथ करना है. दिस इज नॉट अ मैकेनिकल प्रैक्टिस, इट इज डन विद द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेथ. ऑल राइट, रिलीज, रिलैक्स. अब सभी से अनुरोध है कि अब अपने दोनों हाथों को हमें ट्विस्ट करना है सच दैट द राइट arm is placed on the left side and left one is coming in front, twisting behind. Let us hold for a moment. So आप अनुभव कर पा रहे हो कि गर्दन में भी वो खिंचाव हो रहा है, ट्रंक एरिया में भी वो खिंचाव हो रहा है, स्पाइन में भी वो खिंचाव अनुभव होएगा. Hold for a moment. Breathe in, come back to center position. Exhale, turn to the other side, look behind. Breathe in, come back to center. Exhale, turn. Breathe in center and release. Okay, अब दाहिने पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करें. Let me see if I'm visible properly. इसको नीचे करती हूँ थोड़ा सा. Yes. Now allow your hand to be holding at that foot. हो गया? पकड़ लिया, पकड़ लिया. Yes. Now let us turn to one side. Inhale. तो अपने ध्यान को हम यहाँ पे मध्यमा उंगली पर ले जाएंगे. Turn, look over there. Exhale as you allow the hand to be holding together. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. तो जो नेक्स्ट लेवल
So this is what is permissible and to be followed. अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो अपनी जो साइड एरिया है ना, सिर का भाग, उसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करें. कैसे करेंगे? इट्स सेम थिंग, लाइक सिमिलर वे, बट बस इतना ध्यान रखना है जो अपनी एल्बो है ना वो पीछे जाएगी. सो द मोमेंट एल्बोज गोज बिहाइंड यू गेट एन एक्स्ट्रा एक्सटेंशन, तो वो ज्यादा अच्छे से फ्लेक्स होके नीचे आने के ट्राई करेगा. इट्स अ रूटीन प्रैक्टिस. तो बिल्कुल अपने आप पर हार्श मत बनना, आराम से करना, सहजता के साथ करना, धीरे धीरे हो जाएगा. सो लेट अस डू इट. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. करते रहे. Let me check. किसी के सवाल है मन में तो इस संबंध से रिलेटेड, इस पर्सपेक्टिव से रिलेटेड तो प्लीज पूछिए. बाकी करते रहे. This time has to be involved in the practice and not the questions. We have the question time separate. हाँ मैम. Hmm. लक्ष्मी जी. Yes, Lakshmi ji. I'm getting here pain. Right side Let me see. Hold on. here मैम. Okay, okay. करो एक बार. तो दूसरी साइड में करो. जिस साइड में आपको दर्द हो रहा है ना, उसको एक्सटेंड करके दूसरी साइड में करो. बिकॉज समटाइम्स इफ कोई एक जगह अगर कॉम्प्रेस हुई होगी तो वो दर्द करेगा, तो उसको रिलैक्स करने के लिए काउंटर पोज करना जरूरी है. तो उस दूसरी साइड से करना. थोड़ा बहुत दर्द अगर हम नए अभ्यासी हैं तो होता है, बट ऑल्सो एंश्योर दैट यू रिलैक्स इट विद द रोटेशन और द अपोजिट मूवमेंट्स. और ध्यान पूर्वक करोगे तो वो ही जगह और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. you'll be able to overcome that pain. सबको होता है, सबको दर्द होता है. ट्राई करें कि अवेयरनेस के साथ, बिल्कुल सजगता के साथ करें, ताकि वो एक प्रॉपर रिप्लेनिश होने के लिए समय उसे मिले. दूसरी साइड पैरों का पोजीशन चेंज करें. अच्छा, अनदर थिंग, लाइक आई कुड सी शोभा मैम घुटने के नजदीक हाथ जा रहा था ना, समवेयर जस्ट एट द शिन बोन एरिया. उस कंडीशन में चाहो तो आप बेल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. आई हैव टोल्ड दिस प्रीवियसली एज वेल. मेक यूज ऑफ द बेल्ट, होल्ड इट सच दैट. सो लेट मी शो यू किस प्रकार से बेल्ट सहायता दे सकता है. सो योगा बेल्ट हो या फिर कराटे बेल्ट, जो भी है, ensure that you are allowing it to fasten at this point, है ना. अच्छे से उसको पकड़ लीजिएगा. जैसे मान लो जिन का भी यहाँ पे यहाँ तक हाथ जा रहा है, यहाँ मतलब पहुंच नहीं रहा है ना, पहुंच नहीं रहा है, it's too far. उस कंडीशन में पकड़ लो ऐसे. तो आपका काम थोड़ा आसान बन गया. हाथ का भाग, बट कमर में वो खिंचाव लाना है. ओके, सो वी हैव टू एंश्योर दैट वी अलाउ द मूवमेंट. Exhale down. Come on. Exhale down. Come on. जितना कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उतना ही रिलैक्स करना जरूरी है. जैसे मान लो अगर हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं, एक भाग कॉम्प्रेस हो रहा है तो दूसरा एक्सटेंड हो रहा है, फिर दूसरा कॉम्प्रेस होगा, तो अभी आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू चेंज योर पोजीशन. मतलब दाहिना यूज कर रहे थे भाग for compression, now use the left one. Interchange. पकड़ लीजिए उसको अच्छे से. एक्सटेंड करें नीचे. कम अप. नीचे. कम अप. करें. ओके, सो राजीव सर आप रिज्यूम हो गए नो? यस, गुड. बट अभी दर्द है क्या घुटने बेंड करते समय? थोड़ा बहुत अभी है पेन.
थोड़ा बहुत तो इसको ज्यादा, हाँ, आराम से करना, मतलब आई वुड स्टिल सजेस्ट यू नॉट टू पुट प्रेशर ऑन मूवमेंट्स। तो हाँ, अपनी क्षमता अनुसार आराम से करना। बाकी जैसे घुटना होता है, तो जैसे मान लो घुटने को आप बेंड भी कर रहे होंगे ना, तो इतना इतना तक नजदीक लाने की जरूरत नहीं, आराम से ऐसे ओपन करके रखना, ताकि बस एक जैसे होता है ना कमर पे जो हम इफेक्ट चाहते हैं वो ला पाए। नहीं तो यूजुअली आई से यू टू ब्रिंग इट हियर, राइट? व्हाई एम आई टेलिंग यू टू डू दैट? बिकॉज जब हम बिल्कुल हील को रूट पर ले जाते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ का भाग स्ट्रेच हो रहा है, विच आई डोंट वांट यू टू डू इट राइट अवे। अभी फिलहाल अवॉइड करके यू कैन इवन प्लेस अ कुशन ओवर। तो कुशन रखने के कारण क्या होगा कि यू विल गेट अ सपोर्ट फॉर इट टू बी कंफर्टेबली प्लेस्ड एंड गो डाउन, कम बैक। बाकी अगर प्राणायाम करोगे तो वो और ज्यादा अच्छे से फील तो हो ही गया है, इट विल बी यू नो दैट स्पीड विल बी 10x। करते रहे। रिलीज। सभी अच्छे से बैठ जाइए तितली आसन में। तो तितली आसन में, बाकी राजीव सर तितली आसन मत करना, यू कैन अलाउ योर नीज टू बी ब्रॉट फ्रंट। दोनों हाथों को आप ऐसे रखना राजीव सर, और हुएवर हैविंग एनी नी इशू करंटली, उसको बेस्ट आप ऐसे मूव करना। जैसे मान लो turning the knee towards one side and then to the other side. Actually the sole is to be turned to one side then to the other side. Okay, this way. ठीक है, समझ गए? बाकी सभी अपने पंजों को एकत्रित करें, bring them towards you and then get them down. ट्राई करें कि दोनों घुटने बिल्कुल जमीन पर आ जाए, कमर सीधी रहेगी, कोई भी हंच नहीं करेगा। कीप देम इरेक्ट, कीप इट इरेक्ट। लेट मी सी। So I'm going to spotlight somebody, whoever are able to, you know, get it down, okay? क्योंकि इसमें मैं जानती हूँ वो सारे, तो एक मोटिवेशन कहो या फिर जो भी है, it is important to also see your peer members doing it beautifully. So where is it? ये हमारी रश्मि मैम जो कंसिस्टेंटली करती भी है और उनका नीचे आता है। सो इट्स नॉट स्पेसिफिकली द नी विच हैज टू बी ब्रॉट डाउन, बट द शिन बोन एरिया। ओके, शिन बोन एरिया, जो साइड वाला भाग है ना, वो जाएगा जमीन पर। करेंगे, आंखें बंद, क्लोज योर आईज एंड डू इट। करते रहे। So as we do the practice, we'll experience that this thigh area is elongating, relaxing, elongating, relaxing. Let us do it with the awareness कि हम try करें उसको बिल्कुल उस butterfly के flaps को हम नीचे लाएं, है ना? Try करें। अब थोड़ा सा तो you know प्रेशर या फिर यूं कहे तो जबरदस्ती करना पड़ेगा, बट जबरदस्ती नहीं है ये, इट इज जस्ट टू यू नो ट्रेन द मसल्स फॉर अ बेटर वर्जन ऑफ इट। एंड और दूसरी बात, योगाभ्यास की खासियत यह है कि देयर इज ऑलवेज द एनर्जी फ्लो, है ना? तो उस फ्लो ऑफ एनर्जी को डिसरप्ट, it gets disrupted when you get in contact with somebody during the practice, and that's why it is said कि जो भी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसमें कम से कम स्पर्श हो किसी टीचर का भी। क्यों? बिकॉज उस दौरान मेजरली हमें ध्यान रखना होता है दैट वी पुश आवरसेल्व्स थ्रू आवर लिमिट, है ना? नहीं तो फिर वो तो जिम हो जाएगा जिसमें आपको एक ट्रेनर पुश कर रहा है, और योग ऐसा नहीं है। योग अपने आप में हमें और ज्यादा और बेहतर बनाने की ओर ले जाता है थ्रू अस। Hence that's where even the online classes help. Why? Because the major criteria is to convey the message and you have to do it by yourself.
है ना। तो बिल्कुल उस डायलेमा से परे रहना कि ऑफलाइन का एक टीचर रहेगा, वो पुश करेगा, फिर अपना सारे आसन लग जाएंगे, दैट शुड नॉट बी दी गोल, बिकॉज इफ दैट इज द गोल देन दैट्स नॉट द योगा दैट व्हाट वी आर मेंट टू डू। ओके, योग में खुद ही खुद के कर्ता धर्ता होंगे। जब आप खुद से खुद को और ज्यादा इंप्रूव करोगे, वो एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस रहेगा, वो एक कंफर्ट लेवल रहेगा, जिससे कि आप समत्वम योग उच्चते की परिभाषा अपना पाएंगे। So the true meaning of samatvam yoga uchyate is when the equanimity that with whatever we do is being experienced. So yoga कर्मसु कौशलम, और समत्वम योग उच्चते का ध्यान हमेशा रहे with whatever practices that we do. So whatever activity that we do has to be like an art form. तो अभी हम जो अभ्यास कर रहे होते हैं वो भी एक कला है, तो उसको बिल्कुल एक जैसे कोई एक कलाकार कला करता है तो बिल्कुल मग्न हो जाता है, राइट। Similarly, every practice that we do during the practice of yoga abhyas has to be done as if we are carving a sculpture or painting a beautiful art form. So mat is my canvas and my body postures are the art forms. This is what we have to be focusing upon. Fine, relax. अभी क्या करें, टर्न करें, टर्न इन, so let me go a bit behind, टर्न इन, पीछे देखे, फ्रंट, टर्न इन, पीछे देखे, टर्न इन, पीछे, ब्रीथ, टर्न, नो। जब हम पीछे टर्न करने की बात आती है, ट्विस्ट दिस पार्ट, ट्विस्ट इट नाइसली, सेंटर, ट्विस्ट, सेंटर, ट्विस्ट करते रहे। Let me see. Twist. नहीं नीरू जी, हाथ अपने घुटनों पर, हाथ घुटनों पर, यस, हाथ घुटनों पर, यहाँ पे, और टर्न करना अच्छे से कर पाएंगे आप फिर। और ट्राई करना कि दोनों घुटने जमीन पर हो, और घुटनों का भी मूवमेंट ऐसा होना कि एक घुटना दूसरे पंजे के नजदीक हो। ओके, तो बहुत बार हम कुछ छोटे छोटे पीसेस में मिस्टेक्स करते हैं, सो ये ध्यान जरूर दें कि पोस्चर जैसा बताया है वैसा हो। सो द नी इज टू बी क्लोज टू द फुट। मेरा एक्चुअल जो पोजीशन था तो वो तो ये बिल्ली ने ले लिया, सो आई स्टिल हैव टू एडजस्ट, बट द पॉइंट टू बी अंडरस्टूड इज, ओके शी इज गोइंग नाउ, शी अंडरस्टूड इट, उसको समझ आ गया, वो चली गई। So the ghutna has to be brought to the foot, turn in, and then to the other side. Turn in, center, turn in, center. इस अभ्यास के दौरान जब हम टर्न करें ना, उस दौरान श्वास गहरा भरना और लाइक एक्सहेल करना, that is better. Exhale. So when you come front, inhale, or when you turn in, exhale, inhale, exhale. इसके दो फायदे हैं, ब्रीदिंग करने के दो फायदे हैं। हम बिल्कुल लयबद्ध रूप से श्वास प्रश्वास के साथ करेंगे तो एक मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं होगी, बट बिल्कुल लयबद्ध रूप से रिदमिकली हम उस मूवमेंट में उतना टाइम दे पाएंगे, क्योंकि इतना फास्ट करना नहीं है, आराम से श्वास भरना है, प्रश्वास करना है, राइट। जो धीरे धीरे श्वास लेता है, धीरे और पूर्ण श्वास लेता है, वो लंबी समय जीता है। सो कछुए साक्षी है इसके, सो उसके प्रैक्टिसेस थोड़े से स्लो रहते हैं, और जो फास्ट हाफते हुए श्वास भरता है, जैसे चूहा हो गया या फिर कुत्ता हो गया, फिर बिल्ली हो गई, दे हैव अ स्मॉलर लाइफ स्पैन। अब इसका मतलब ये मत समझना, ये मत कहना मुझे कि डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स व्हाट डू, दे हॉप और दे स्विम, बट स्टिल उनका पोजीशन, उनका बॉडी शेप कैसा रहता है? हाँ, so everybody is destined that way, but overall we humans are
destined with more better properties कि अगर हम अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल भी कर पाए या फिर एक्सटेंड भी करना चाहिए, वो अपने हाथों में है ना. डॉल्फिन्स को कभी मैंने पतला नहीं देखा है. आई हैव नेवर सीन. Even the whales also. So they have their own body structure, but we have got special abilities कि हम चाहे तो अपनी बॉडी को जैसा चाहे मोल्ड कर सकते हैं. रिलैक्स. हाँ ठीक है, डन. रिलीज रिलीज रिलीज. बैठ जाइए अच्छे से, कमर बिल्कुल स्ट्रेट. सुखासन में बैठना. लेट अस सिट इन सुखासन. क्लोज द आईज. ब्रीद इन. बिल्कुल एक मौन में रहे कुछ समय. लेट अस बी इन दैट स्टिल मोमेंट, स्टिलनेस, जहां पे जैसे हम बचपन में अपनी टीचर कहती थी ना, पिन ड्रॉप साइलेंस. यस, दैट पिन ड्रॉप साइलेंस. इतना अच्छे से मौन हो कि बिल्कुल एक पिन भी, सुई भी नीचे गिरे तो उसका आवाज सुनाई दे. अपने श्वासों का आदान प्रदान भी हमें सुनाई न दे. इस भाव के साथ बिल्कुल धीमी गति से श्वास भरे. लेट अस बी completely involved in breathing in. कोई भी अगर स्पाइन बेल्ट वगैरह यूज करता है तो योगाभ्यास में मत करना. ओके, प्लीज डोंट यूज एनी कमर का बेल्ट वगैरह ड्यूरिंग द प्रैक्टिस, बिकॉज वी वांट यू टू improve the body movements without any obstruction. ऐसे कोई उसको अगर अकड़न जकड़न में रखते हुए, बॉडी को अकड़न जकड़न में रखते हुए करेंगे तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा. ट्राई करें कि हम वॉलंटरीली अपने अपने कमर को एलोंगेट रखते हुए अपनी बॉडी पोस्चर में रखें. ओके, so this is the time, this is the yoga time where we allow our voluntary movements to be invoked. करते रहे. Breathe in, breathe out. चेहरे पर एक मंद स्मित हास्य बना रहे. लेट अस कीप अ जेंटल स्माइल ऑन द फेस. जैसे राम की हंसी थी, स्मित हास्य था, है ना. बिल्कुल राम जैसी मंद मंद स्मित हास्य चेहरे की हर एक कोशिका को ऊर्जित करता हुआ यह भाव अपने शरीर, अपने मन में रखे. लेट अस imbibe and inculcate that feeling of positive smile, spreading its positivity all around the facial muscles area. मन में यह भाव रहे, मैंने खुद को माफ किया, मन को हल्का किया. मैंने, because we can forgive somebody else only when we first forgive ourselves, है ना. तो मन में यह भाव रहे कि मैंने खुद को माफ किया, मन को हल्का किया. मैंने खुद को माफ किया, मन को हल्का किया. I forgive myself whatever grudges that I had been holding on towards me. I'm letting it go, and at the same time making my mind becoming more free, lighter.
Now let us imbibe the second thought. मैंने सबको माफ किया, खुद को हल्का किया. We are not doing it for somebody else, but we are doing it for us. When we hold on the grudges of somebody else, it is actually hampering our own self. So मैंने सबको माफ किया, खुद को हल्का किया. मैंने सबको माफ किया, खुद को हल्का किया. The more lighter we feel inside, the more better we are able to experience and heal within. Hence, it is very important to be experiencing that lighter version. जैसे पॉपकॉर्न होता है ना लाइट, बिल्कुल वैसे ही अपने अंदर वो हल्का फुल्कापन का भाव रहे. श्वास भरे गहरा. And let's finally allow the movement of joining both palms together. And let's pray a small, beautiful prayer. हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी. त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव. Let us get ready to breathe in once over again and rubbing both palms together, placing them over the eyes. You may slowly open. And yes, okay, so we can conclude or wrap up the session today. Thank you so much. Namaste. Wish you all a beautiful morning, energetic Monday. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Same to you. We wish you the same. Thank you, Neha ma'am. Yes, thank you. Ma'am, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Neha ma'am. Thank you. Thank you, Neha ji. Thank you. Thank you, Neha ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Neha ji. Thank you. हाँ बिल्कुल एक्टिव पॉपकॉर्न की तरह हल्का फुल्का. Thank you. Thank you so much. Wish you all a lovely day ahead. अच्छा कोई क्वेश्चन होगा तो we can take it up, okay? वैसे तो मुझे लगता है कि नेहा जी है. अच्छा ठीक है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. हाथों और पैरों के जो तलवे हैं उनको पसीना आता है आजकल. हाथों पैरों में पसीना आ रहा है. अच्छा वैसे इन जनरल कह रहे हो ना. हाँ. वो उसके दो कारण है. फर्स्ट कारण तो ये है कि वीकनेस का ये सिम्टम है यूजुअली, और दूसरा कारण ये है एसी में जो ज्यादा रहते हैं उनको ये सिम्टम्स महसूस होते हैं. सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया. तो एसी में रहना सबसे पहले कम करना, एंड सेकेंडली एलोवेरा. हाँ नहीं यूज कर रहे हो तो फर्स्ट कंडीशन होगा. पहले यूज करते थे क्या एसी? नहीं. अच्छा तो फिर पहला कंडीशन होगा, बिकॉज यूजुअली इट्स अ सिम्टम ऑफ वीकनेस इन द इनर एरिया ओनली, जो एग्रेवेट हो जाता है अगर हम एसी यूज करें तो एसी बंद करना. सेकेंडली अगर आप प्रैक्टिस करोगे योगाभ्यास, इट विल फाइंड, इसको मराठी में हाथ, कोंकणी में वी कॉल इट तेवेता हाथ. हाथों में पानी पानी आता है. किसी को हैंडशेक करते हुए भी डर लगता है कि वो क्या कहेगा ना.
Is that what you feel? और usually जब डर लगता है या फिर something what we are not at ease with, उस टाइम पे जल्दी पसीना आएगा, या फिर somebody कोई अगर कहेगा अरे हाथों में पसीना तो नहीं आता तुम्हारे, तो फिर आने लगेगा. So this is what something which you experience. Is that what you're No, saying no. or during अभी the एक दो दिन practice? से हो रहा है और अच्छा. maybe too much exercise. I don't know. No नहीं नहीं weakness ऐसा as कुछ such. नहीं है. Weakness Lack होगा, of but too much exercise से कुछ नहीं होता. Like I had this same thing with my cousin sister, so I thought to share it to you. But योगा अभ्यास से वो फिर clear हो, मतलब अगर आप properly करोगे ना प्राणायाम वगैरह, और तो less वो sleep. Is the less sleep, हाँ हाँ less sleep भी. See, परसों में these मैं 1 are बजे the, सोया, फिर 5:30 बजे उठ के किया फिर. हाँ हाँ. So Saturday when the Sunday थोड़ा inner self is हो not जाता है at sleep. ease with, inner self is not at ease with, उस टाइम पे वो होता है. स्पेशली जैसे पेंशन किया था, जब किसी का डर लगे या फिर जब अंदर हम प्रॉपर स्लीप ना ले, when अंदर डिस्कम्फर्ट हो, उसका डायरेक्ट सिम्टम हाथों तलवों में पानी आना हो जाता है. Weakness तो तो ऐसा सॉल्ट नहीं है, इंटेक कम but करें. हाँ, सॉल्ट इंटेक कम करना. बाकी अगर आप योगाभ्यास, नींद प्रॉपर लोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट to have a good sleep, because that's where the repair mechanism starts, right? So नींद प्रॉपर ले. क्यों 1 बजे सोते हो इतना लेट? weekend थोड़ा. अच्छा, वीकेंड. हाँ, हाँ, ठीक 25 है, तो years के एक बाद दिन की MBA का बात है. मीट था थोड़ा, तो फ्राइडे को वो वो हुआ, तो फिर एक दिन की सैटरडे बात है थोड़ा. ना. वीकेंड हाँ, you don't do sleep it quality every is day, good, right? thanks to you. Sleep quality is good, वो इशू नहीं है, but थोड़ा time is less हो रहा है. हाँ, तो Otherwise weekend there तो is no ठीक. symptoms of weakness. Weakness तो है. हाँ, तो कोई बात नहीं, हाथों का तलवों का जो पसीना है वो भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, निकलता है तो निकलने दो. धन्यवाद. यस, ठीक है. नेहा जी, नेहा लीना दिस साइड. आपसे यस यस लीना जी. आपने लास्ट टाइम बैक प्ले बताया था ना, I wanted you to हाँ. just check. I've been practicing, but मैं शायद कुछ ठीक नहीं करी, but आपकी if you could हाँ, just. बताइए. तो ये जो trying to do like this and then ये जो ऐसे है, forehead should touch the floor, right? यस, एंड सबसे पहले तो आप इतना टाइट पैंट्स मत पहना कीजिए. हाँ जी, वो मैं सिंथेटिक पैंट्स बिल्कुल छोड़ दो. हाँ, यस. बिल्कुल सही है. पर इसमें यहाँ पे स्ट्रेच आना चाहिए, राइट? यस, इसका एक तो सिर्फ पहुंचना नहीं है, पर आई जस्ट पहुंचेगा. दोनों घुटने सीधे रहते हैं कंपैरेटिवली. लाइक ट्राई करना कि दोनों घुटने सीधे हो. यस, दोनों, बोथ द नीज हैव टू बी, बट थोड़ा बहुत तो बेंडिंग हो ही जाएगा, दैट्स ओके. बट ट्राई करना कि घुटने सीधे रहे. यस. I'll practice this, Aji. या ठीक है. Thank you. ठीक है, सो डन. एनीबॉडी एल्स? ओके, सो थोड़ा सा प्राणायाम करना क्लास के बाद. हाँ जी अशोक जी. B12 का आपने बताना था. किस बारे में? B12. Oh yeah, no, फिर मुझे वही मैसेज आया था ना कि somebody want me to do it next day, कि मंडे था वो. Let me just check कि मंडे नहीं होगा, ऐसा कुछ मेंशन पर्सनली मुझे मैसेज किया था. होल्ड ऑन, तो जिसने क्वेश्चन पूछा था उसने मुझे कहा था. So that's why I'll take it up that day only, I thought. बट फिर भी मैं बता देती हूँ. गिव मी सम मोमेंट कि मैं चेक करती हूँ कि क्या कहा था उसने. ओके, वो रिकॉर्डिंग देख लेगी. ट्यूसडे, हाँ कल करें क्या? कल बात करें इस बारे में प्रॉपर. ट्यूसडे शी हैड आस्क्ड फॉर. जी ओके. इज दैट ओके? यस. और कोई सवाल है? Can you also take vitamin D deficiency, because this is also observed today? हाँ, विटामिन B12 एंड विटामिन D बहुत कॉमन है. तो हालांकि इस बारे में हाँ मैं बता दूंगी वैसे कल, बट इस बारे में स्पेसिफिकली जब हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे उसमें वो ज्यादा अच्छे से कवर होगा. बिकॉज व्हाटएवर दैट वी टेक व्हेन गेट्स एब्सॉर्ब्ड वेल
तो फिर वो अलग अलग स्रोतों तक पहुंचेगा और न्यूट्रिएंट्स बनने में हेल्प होगा. बट अदरवाइज what other practices could be done that we can talk about in tomorrow's session? Yeah, B12, vitamin D दोनों को साथ में कवर करेंगे Q&A में. Ma'am, और also कोई? don't feel much of energy and stamina in me, because of which it becomes to push myself for yoga. I love yoga, but I have to push myself for yoga. Why? Because I feel lack of energy and stamina in myself. Okay. हाँ, तो वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा रंजिता जी. कंसिस्टेंट रहना, प्राणायाम ज्यादा करना. Increase the span of your pranayam. It will help you improve the internal strength within you. और ट्राई करना कि आप ओपन एयर करो, मतलब खिड़कियां खुली रहे, या फिर ट्राई करना कि जैसे टेरेस अगर आपके घर पे है, इफ यू हैव दैट फॉर फैसिलिटी, डू इट आउटडोर. लाइक मेरा मन करता है कि मैं करूं, बट बिकॉज आई हैव टू बी विजिबल टू यू, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई हैव टू डू इट इनडोर्स. बट स्टिल लाइक अभी जैसे अभी का मौसम है, यू कैन सी it's sunny right now. तो हाँ, तो जैसे जैसे 6 बज जाते हैं तो वो सूरज उग के अच्छे से आ जाता है. बट आई ऑलवेज से दैट आपके पास वो फैसिलिटी है कि आप ओपन एयर करो. आई डोंट पुट सो मच प्रेशर कि मुझे लाइट्स दिखने चाहिए, मुझे प्रॉपर दिखने के लिए. इट्स ओके, आई कैन फील इट. जैसे मैं भूपेश जी को, अगर वो है क्लास में, भूपेश जी को भी मैंने यही कहा, हाँ भूपेश जी, यस, उनको भी यही कहा था. आई परफेक्टली डोंट माइंड यू टू be with the lights or something, but make sure कि थोड़ा सा विजिबिलिटी रहे और ओपन एयर करना. यस, ठीक है. नेहा जी, मेटाबॉलिज्म वर्कशॉप की डेट्स फिक्स्ड है, हो गई क्या? हाँ, वो मैं बता दूंगी ग्रुप पे. ओके, थैंक यू. मैम, हाँ जी. मैं जब शोल्डर रोटेट करते हैं ना, तब हाँ. आवाज आती है, ऐसा क्यों होता होगा? कट कट की आवाज. हाँ, यस. हाँ, कोई बात नहीं, आराम से करना, प्राणायाम करना. कुछ वीकनेस होगी. मुझे ऐसे इसका प्रॉब्लम तो है सर्वाइकल का. अभी वर्कशॉप की वजह से अच्छा है, फिर भी ये जैसे ही राइट लेफ्ट करते हैं ना, तो पीछे से जैसे आवाज आती है. ऐसे हम्प जैसा है क्या? कुछ हम्प जैसे बना हुआ है पीछे? नहीं मैम, अभी तो नहीं है. ओके ओके. तो जब भी प्राणायाम करे, रोटेट करना शोल्डर्स को. अगर थोड़ा बहुत कट आता है, कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद वो सही हो जाएगा. प्राणायाम करते समय शोल्डर्स पर ध्यान देते समय श्वास गहरा भरे, गहरा छोड़े, गहरा भरे, गहरा छोड़े. हाँ, वैसे कट की आवाज में कोई दिक्कत होती नहीं है, मेरे को भी होता है. हाँ, वही तो मैंने कहा. तो बिल्कुल इस बारे में सोचना मत. जितना ज्यादा हम सोचते हैं, फिर वो और ज्यादा अग्रेवेटेड फॉर्मेट में हमें महसूस होने लगता है. तो और हाँ, अनदर टिप ऑल्सो, अगर जिसको भी दर्द है ना, उस दर्द के बारे में बिल्कुल मत सोचना. आई मीन ट्राई टू इनकलकेट पॉजिटिव अफर्मेशंस कि वो बिल्कुल छट जाए. नहीं तो जितना हम उसको आलिंगन देते हैं, उतना वो और हमारे पूरे घर में पनपने के ट्राई करता है. फिर वो सर्वाइकल का लंबर पेन हो जाएगा, फिर कहीं और. तो ट्राई करें कि आप उसको रिप्लेनिश करके बिल्कुल हील करने का ट्राई करें. ज्यादा दर्द के बारे में सोचे नहीं, बट ट्राई टू indulge in rejuvenating it with the practices of pranayam और योगाभ्यास. मेरा तो यही मन होता है, इवन अगर डायग्नोसिस भी करने से पहले एटलीस्ट 7 दिन खुद को दीजिए, बिल्कुल 100% प्राणायाम और योगा करो, और फिर डॉक्टर के पास जाओ अगर आपको ऐसे डिस्कम्फर्ट रहता हो तो. नहीं तो आधा मरीज तो आधा वो रिपोर्ट देख के ही डर जाता है. इट्स द फैक्ट, राइट? किसी को अगर कैंसर पेशेंट को कहो तुम्हें कैंसर है, तो वो आधा वो सुन के ही मर जाता है, विद दैट थॉट ओनली दैट आई हैव गॉट अ कैंसर. This is a fact. मतलब वो एक्चुअली पता है, I have a real incidents where हमारे पतंजलि में एक साध्वी है, जैसे आपको पता ही होगा, there are sannyasis also been adopted by स्वामी जी. तो एक और सन्यासी जी थी जो हमारे हॉस्टल का एक अनुशासन, she keeps under control. So her mother was diagnosed with cancer.
तो द मोमेंट शी रियलाइज्ड इट कि अच्छा उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, शी डिड नॉट टेल इट टू मदर, उनको बताया नहीं, बट बिल्कुल सब उसने अपना काम झाम छोड़ दिया, वट एवर प्रोफेशन दैट शी वाज विद उसने छोड़ दिया, इस भाव के साथ जब मेरी माँ ही नहीं बचेगी तो क्या ही बचेगा, तो उसने सब छोड़ दिया और बिल्कुल लग गई माँ की देखभाल के लिए। पूरा टाइम 24/7 उनको उनकी ध्यान रखा, प्राणायाम करवाया, योगाभ्यास करवाया, एंड शी कुड रिकवर। हालांकि डेफिनेटली शी टुक द पंचामृत ऑल्सो, मतलब गिलोय, आंवला, तुलसी और wheat grass, and the fourth one giloy, avla, tulsi, wheat grass, and what is the fifth one? I'll have to think. So in panchamrit ko she took, and thereby she was able to recover from her cancer timely. So पेशेंट को भले ना बताओ बट थोड़ा बहुत अवेयरनेस तो जरूरी है ही, क्योंकि हम फिर वो फोकस्ड बन जाते हैं। बट जब मैं कह रही हूँ कि किसी डिजीज को आलिंगन देने से अच्छा है हम खुद ही पहले अलर्ट होके करें, है ना, सो दैट वुड बी ऑलवेज बेटर। यस, थैंक यू। दैट्स इट। प्राणायाम में अनुलोम विलोम ही करना है या अनुलोम विलोम काफी है, अनुलोम विलोम ठीक रहता है, काफी है। बाकी हम योगाभ्यास तो करते ही है रेगुलरली, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उद्गीत प्राणायाम, दे ऑल हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, बट ओवरऑल अगर हम कहे समय मिले तो अनुलोम विलोम काफी रहता है। ठीक है, डन। सो सी यू एवरीबॉडी, बाय बाय। विजय जी कुछ पूछना चाहते थे क्या? मैडम 5वां एलोवेरा है क्या? नहीं, गिलोय, आंवला, वो तो बोला मैंने ना, गिलोय, आंवला, एलोवेरा, नहीं एलोवेरा छोड़ दिया था मैम। और नीम, यस, तुलसी नहीं, आंवला एलोवेरा भी छूटा नहीं था। गिलोय, आंवला, एलोवेरा, तुलसी, नीम, इन 5 का। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैम मैं एलोवेरा जूस लाई हूँ, कैसे लेने का? 20 ml खाली पेट, आंवला और एलोवेरा 20 ml, और 10 ml का 20 ml बना के पानी के साथ, ल्यूकवार्म वाटर, खाली पेट। गैस्ट्रिक रहेगा तो आंवला नहीं लेते ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस पित्त अगर ज्यादा हो तो अवॉइड करने को कहते हैं। आपको पित्त का इनिशिएटेड है, ओके, तो आंवला लो, सॉरी एलोवेरा लो, एलोवेरा इज वेरी बेनिफिशियल फॉर दैट। थैंक यू। एलोवेरा बहुत बेनिफिशियल है, गैस हो, अपचन हो, खट्टी डकार आने के सिम्टम्स हो, उस कंडीशन में एलोवेरा इज गुड। बट यू नो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर हम घर में ही उगाएं, क्योंकि कितना भी मना करे तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते ही है ना पैक्ड में, तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी एलोवेरा जूस भी लाइफ टाइम मत लेना, 1 महीने लेके थोड़ा ब्रेक लेके फिर लेना, नहीं तो फिर वो आदत बन जाएगी। हाँ, घर का अगर है तो उसका जो येलो पार्ट होता है उसको निकलने के बाद जो जेली होती है वो यूज कर सकते हैं। येलो पार्ट शुड नॉट बी यूज, दैट वो जो एक डिंक कहें या फिर जो भी कड़वा होता है उसका, वो टेस्ट करने में भी कड़वापन लगता है, दैट हैज टू बी नॉट यूज्ड। एलोवेरा को काट के ऐसे रखते हैं, उसको लटका के रखते हैं ताकि वो जो येलो है उसको निकले, हाँ वो निकल जाता है, एंड देन दैट व्हाइट जेली टू बी यूज्ड। डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होने के लिए भी एलोवेरा का जूस ले सकते हैं क्या? हाँ। उसका क्वांटिटी का ऐसा कुछ नहीं है, ओनली 20 ml इन द ल्यूकवार्म वाटर, हाफ कप ल्यूकवार्म वाटर। अगर हम पैकेज लेते हैं तो 1 महीना लेने के बाद ब्रेक करना, एटलीस्ट 2-3 वीक्स। अगर घर में हमारा होगा तो वो लेना, हाँ तो वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतनी सी काफी रहती है, इतनी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यस, सी यू। थैंक यू नेहा जी, थैंक यू। मैम अगर घर पे एलोवेरा है तो उसका डायरेक्ट उसको ऐसे ही खा सकते हैं या जूस बनाना? हाँ खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चबा के खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एलोवेरा की सब्जी भी बनती बोला कि सब क्या इक्वल क्वांटिटी में लेते हैं क्या? पंचामृत का जो जूस? अच्छा, हाँ, यस, इक्वल क्वांटिटी। और उसमें व्हीट ग्रास डालते हैं कि नहीं? व्हीट ग्रास जाएगा, व्हीट ग्रास बोला तो था। तो वो 6 हो गया ना फिर, अगर नीम डाल तो डालो फिर 6, मतलब व्हीट ग्रास इज आल्सो बेनिफिशियल,
बट तुलसी का भी इतना ध्यान रखना कि वो चबाना नहीं होता है। आई होप यू मस्ट बी अवेयर, चबाना नहीं होता तुलसी के पत्तों को, तो ये जूस ही बनेगा। तो व्हीट ग्रास ले सकते हैं, बाकी व्हीट ग्रास बेनिफिशियल है। चबाने नहीं है तो अगर अपन तुलसी, ऐसे खाते आंवला, हैं, एलोवेरा, व्हीट ग्रास एंड नीम, 5 तो हो गए। कौन सा रह गया? छठा कौन सा हो गया? मैम गिलोय भी बोला था ना पहले। हाँ, गिलोय भी बेनिफिशियल, तो अल्टरनेट करके दिला। दीज 6 आर वेरी बेनिफिशियल। मैम आप बोल रहे हैं तुलसी चबाना नीचे, तो फिर तुलसी कैसे खाते हैं? तुलसी को या तो पानी, मतलब तुलसी के पत्तों को पानी में डाल के फिर वो डिटॉक्स वाटर बन जाता है। चबाना नहीं होता है तुलसी को, वो दांतों के लिए वो सही नहीं है, टैनिन होता है उसमें। अदरवाइज यू कैन मेक अ जूस आउट ऑफ इट। और फिर जैसे मान लो किसी को खांसी है तो फिर उसका जूस अदरक कूट के वो ले सकते हैं, बट नहीं चबाना नहीं। मतलब डेली में प्रसाद में जो तुलसी रहती है वो फिर नहीं खाना? हाँ, वो आप करके उसको, उसके अर्क को सोख कर लो मुंह में ही, चबाना नहीं होता है उसको। Try to allow that saliva and the tongue to take the अर्क out of it, but चबाना नहीं होता। ठीक है, थैंक यू मैम, ये नहीं पता था। ठीक है। हाँ, तो यही है ना कि एक्चुअली sometimes the lack of knowledge and then when we do and then when we get the side effect, फिर वो एक बन जाता है all herbs are poisonous, somebody said that, right? तो all herbs are never the poisonous, they are beneficial। भगवान ने उनको कुछ सोच समझ के बनाया है। ठीक है, थैंक यू। इनफैक्ट ऑल हर्ब्स आर बेनिफिशियल, एक भी पौधा नहीं है जो बेनिफिशियल ना हो। चरक जी ने, कणाद जी ने तो विष से भी रोग दूर किए हैं। यू नो, विष को भी अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन में, प्रॉपर मात्रा में लेते हैं तो वो अमृत बन जाता है। किसी रोग को काटने के लिए विष भी अमृत तुल्य है, बस बशर्ते जरूरी है कि हम प्रॉपर वैद्य के पास जाए। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।